Hello students, welcome to the commerce stream. Now you will be well versed with the terminology of accountancy and you would have gone through the concepts, conventions and principle of accounting. Today we will begin with the first numerical chapter, that is accounting equation. The accounting equation states that the assets are equal to the sum of capital and liabilities. Assets means all that we own. We means the business. Liabilities means all that we owe to the outside world. Means the amount that the business has to repay to the third parties. And capital means the investment made by the owner in the business. It is the very first or the initial transaction of a business where the owner invests some money and starts a business. Now the question comes, बिजनेस भी ओनर का, पैसा भी ओनर का, देन कैपिटल क्यों लिखना है या कैपिटल को लायबिलिटी की तरह क्यों ट्रीट करना है? जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी. बिजनेस इज एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. ओनर पैसा तो लगा देता है, मगर आपको क्या लगता है वो पैसा लगा के भूल जाता है? बिल्कुल नहीं. वो बिजनेस में पैसा इसलिए लगाता है बिकॉज ही नीड्स इंटरेस्ट which he earns in name of profit from the business. तो भाई अगर वो बिजनेस में पैसा लगा रहा है मतलब उसको भी वापस चाहिए अपना पैसा, एक साथ नहीं चाहिए. लेकिन उसको तो बाकी लोगों ने तो जितना पैसा बिजनेस को दिया उनको उतना ही पैसा चाहिए. ओनर को तो नहीं भैया, मैंने एक बार पैसा लगा दिया, अब मुझे वो पैसा तो चाहिए ही चाहिए वापस, उसके ऊपर भी पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए मुझे, प्रॉफिट. तो वो तो हमारा सबसे बड़ा क्रेडिटर हुआ ना, हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी हुई. Because business has to look after him, business has to give him return in forms of profit. So the capital is also treated as the liability of the business. Whatever are the expenses of the business will reduce the profit, and whatever are the incomes of the business will increase the profit. So we subtract the expenses from the capital and we add the incomes to the capital in the accounting equation. Now there are various terms which are related to capital. The first one is profit. The another one is drawing. अब drawing क्या है? कई बार ऐसा होता है कि ओनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है उसको उसमें से कुछ पैसा वापस चाहिए होता है. वो प्रॉफिट के अलावा भी बिजनेस से कुछ पैसा लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए. सपोज मैंने बिजनेस में आज पैसा लगा दिया, मुझे प्रॉफिट भी मिला, सब हुआ, लेकिन आज मुझे तो एकदम तुरंत 50,000 रुपीज चाहिए, मेरे बैंक अकाउंट में तो है नहीं. तो मैंने क्या किया, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट था वहां से निकाल लिया. या फिर बिजनेस में जो गुड्स पड़े हैं उसमें से कुछ मुझे अपने लिए चाहिए, अपने पर्सनल, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है और मुझे एक टी शर्ट लेना है, तो मैंने जो शॉप में टी शर्ट थी वो ले ली खुद पहनने के लिए. दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग. Drawing may be in form of cash or in form of goods withdrawn from business for personal use. In the same way, if any expense of owner is paid by business, it is also treated as drawing. ओनर का टेलीफोन बिल आया, ओनर ने अपने अकाउंट से नहीं पे किया, फर्म के अकाउंट से पे किया, दिस विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग. नाउ एसेट्स. एसेट मीन्स जो सामान हमारा अपना है, जिसे हम अपना बोलते हैं, what we own, what the business owns. Now let us take few examples.
Suppose the business is being carried on from a building purchased in name of business. और या सपोज करो हमारा एक बहुत छोटा सा बिजनेस है, वी हैव अ शॉप, लेकिन वो शॉप हमने खरीदी हुई है, वो शॉप बिजनेस के नाम पे है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज द असेट ऑफ द बिजनेस। लेकिन मान लो वो शॉप खरीदने के लिए हमने बैंक से लोन लिया है, देन व्हाट? Even then, because we are the owner of that shop, it will be our asset, though bank will be our liability. And if that shop is on rent, तो यहाँ क्या है, ओनरशिप तो हमारी कोई भी नहीं है भैया, वो कभी भी आके बोलेगा चलो अपना सामान लो और जाओ, तो हम तो उसके ओनर बिल्कुल नहीं है, हमें उसके बदले रेंट देना है। तो यहाँ shop is not our asset, rather the rent that we pay for the shop is our expense. Whenever we will read the accounting equation, we will see 2-3 terms in the assets column, such as land, building, plant, machinery, furniture. हमने डेफिनेशन पढ़ ली, ये सब वो चीजें होंगी जो बिजनेस के नाम पे खरीदी गई होंगी। बट देयर विल बी वन मोर टर्म, गुड्स और स्टॉक। व्हाट इज दिस? गुड्स क्या है या स्टॉक क्या? गुड्स और स्टॉक मीन्स द कमोडिटी इन विच द बिजनेस डील्स। मेरी कपड़ों की दुकान है, तो वो जो क्लोथ्स मैं खरीद रही हूँ रीसेल पर्पस के लिए, दोज आर द गुड्स। मेरी फर्नीचर की शॉप है, तो जो फर्नीचर मैं रीसेल पर्पस के लिए खरीद रही हूँ, दोज फर्नीचर्स आर माय गुड्स, दे आर नॉट माय असेट्स। क्योंकि असेट्स वो होते हैं जिनको हम अपने नाम पे अपने यूज के लिए खरीदते हैं। मीन्स द असेट्स आर दोज थिंग्स व्हिच बिजनेस बाय इन इट्स ओन नेम फॉर इट्स ओन यूज, not for resale purpose. Goods are those assets or those commodities which are bought by business for resale purpose. Let us go through the examples given. Suppose I have a furniture shop and I purchased 500 chairs for resale purpose. ये हमारा stock होगा, हमारे goods होंगे। 10 chairs were purchased for office use. ये हमने बिजनेस के यूज के लिए खरीदा है, अपने पास रखने के लिए खरीदा है, रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा है। तो these will be the assets of the business. From the 10 chairs, the employer took 3 chairs for personal use. अब इन 10 कुर्सियों में से क्या हुआ, मैंने कहा 3 दे दो, मैं घर ले जाऊंगी, घर में लोग बैठेंगे। यहाँ क्या हुआ, मैं बिजनेस में से 3 चेयर जो बिजनेस के पैसे से खरीदी गई लेके अपने घर आ गई। That will be termed as drawing. Now creditor and debtor. Creditor means जिससे हम गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पे, माइंड इट, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब हमने उसको आज सामान तो खरीद लिया मगर हमने उसको अभी तक पैसा नहीं दिया है, वी विल पे हिम ऑन अ लेटर डेट। दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स and there are liability. In the same way, the person whom we sell goods on credit, only goods जिनको हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, मतलब हमने सामान उनको बेच दिया, गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, बट अभी तक हमें पैसा नहीं मिला, दे आर कॉल्ड डेटर्स एंड दे आर ट्रीटेड एज एसेट्स। उनको एसेट्स की तरह क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि ये हमारा वो कैश है जो अभी तो हमारे पास नहीं आया है बट आएगा। नाउ अगर हम किसी पर्सन से कोई लोन लें या किसी पर्सन को कोई लोन दें, तो क्या उसे क्रेडिटर या डेटर बोला जाएगा? नो डियर। क्रेडिटर एंड डेटर सिर्फ गुड्स के टर्म में आता है। मान लो मैंने बैंक से लोन लिया या मैंने मिस्टर एक्स से कोई लोन ले लिया, तो विल नॉट बी माई क्रेडिटर, हिज नेम विल अपीयर in the liability column.